دوستوں، 19 جمعۃ المبارک کے دن جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں ایک نئی زندگی کی شروعات کروں، ایک ایسی زندگی کی شروعات کروں جس زندگی میں نہ تو دکھ ہو، نہ تو درد ہو، نہ تکلیف ہو، نہ کوئی اور پریشانی ہو، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے وہ سورۃ الکوثر کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوا ہوں۔ خدا کی قسم، آپ کی قسمت بدل جائے گی، ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکیں گے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آج جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، آج دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، اسے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا، اتنا پیسہ آئے گا، ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومے گا، ایک دن میں کروڑوں ملیں گے۔ انشاءاللہ آج جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا، یہ اتنا تیز وظیفہ ہے کہ 2 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ اللہ والوں، جس بندے کی کئی سالوں سے جیبیں خالی ہیں، جو بندہ کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمت و برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج جمعۃ المبارک کے دن دولت کا وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ 70 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات غیب سے فرشتوں سے آپ کے گھر میں بھجوا دے گی۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی پل میں دور ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر کی کمالات کو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن جمعۃ المبارک کے دن شعبان کے مہینے میں، کملی والے آقا کے مہینے میں جب سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا جاتا ہے، پھر منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ تمام وظیفوں کو بھول جائیں گے۔ صرف جمعۃ المبارک کے دن ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کو بتایا، جس نے پڑھا، رب کریم نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ صورت ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک صاحب مولا حضرت علی شیر خدا مشکل کشا کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور فرمایا کہ میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ مولا علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، کہا میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں، نرینہ اولاد دے دیں۔ مولا علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا علی میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، اپنا مسئلہ بیان کیا تو مولا علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ وہ تینوں شخص چلے گئے۔ پاس بیٹے اللہ کے نیک بندے نے مولا علی شیر خدا سے پوچھا کہ آپ کے پاس 3 بندے تشریف لائے اور تینوں نے اپنے مختلف مسائل کو پیش کیا، آپ نے تینوں کو استغفار کا ہی ذکر کیوں بتایا؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں کسی کی جان نہیں چھوڑ رہی تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے تو وہ توبہ کرے۔ توبہ کا ذکر، استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور کملی والے آقا کے مہینے میں کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کے بعد ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا کہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج 19 شعبان جمعۃ المبارک کے دن اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کے بعد سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ جو لوگ غیب سے مدد چاہتے ہیں، جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ بن مانگے اپنی ہر حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا کرانا چاہتے ہیں، وہ 19 شعبان جمعۃ المبارک کے دن
सूरत अल कौसर को एक बार बताए गए तरीके से लाजमी पढ़कर देखिएगा। सूरत अल कौसर के कमालात तो हर कोई जानता है, लेकिन जो सूरत अल कौसर को कमली वाले आका के महीने में जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ जाता है, फिर घर के तमाम तंगदस्तियाँ, आपके कारोबार में जितनी रुकावटें हैं, जितनी परेशानियाँ हैं, जितनी बंदिशें हैं, वो गैब से ख़त्म हो जाती हैं। अगर कोई बंदा नया घर चाहता है, नया घर मांग ले, गाड़ी चाहता है, गाड़ी मांग ले। अगर कोई बंदा बे औलाद है, नारीना औलाद के लिए पढ़ ले। जुम्मतुल मुबारक के दिन को ईद का दिन भी कहा जाता है। जुम्मतुल मुबारक के दिन को बख्शिश का दिन भी कहा जाता है। इस दिन में एक घड़ी कबूलियत की है, जिसमें मांगने वाले को हाथ उठाना नहीं पड़ता, हर शे खुद चलकर आपके पास आती है। अल्लाह वालों, 19 शाबान जुम्मतुल मुबारक की फजीलत व बरकत जितनी बताऊंगा उतनी कम है। सिर्फ इतना कहूँगा कि 19 शाबान जुम्मतुल मुबारक के दिन सूरह कौसर को बताए गए तरीके से पढ़ लीजिए। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब आपके मुल्क में 19 शाबान जुम्मतुल मुबारक का दिन आ जाए, शाबान का तीसरा जुम्मतुल मुबारक आ जाए, तो आप इस सूरह कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा एक बार लाजमी करना। शाबान का महीना अलविदा हो रहा है, आखिरी मौका है। ये मौका हाथ से निकल जाएगा तो बार बार नहीं आते। अभी मौका है, अभी वक्त है। जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, रब्बे करीम से हाथ फैलाकर मांग लीजिए। मेरा रब झोलियाँ भर भर के अता फरमाएगा। और अगर कोई बंदा बेबस है, लाचार है, कई सालों से हाजात पूरा होने का नाम नहीं ले रही, जो वजीफ़ों से थक चुका है, वो एक बार शाबान के तीसरे जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफ़ा शुरू से एंड तक पढ़कर देखिएगा। आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा। और ये वजीफ़ा इतना ख़ास है कि सुबह पढ़ते हैं तो शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। शाम को पढ़ेंगे तो सुबह तक तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। आज का वजीफ़ा मेरी वो बहनें ज़रूर पढ़ें जो घर में जवान बेटी हैं, रिश्ते नहीं हो रहे। रिश्तों के लिए भी ये वजीफ़ा बड़ा करामत है। बेटियां खुद पढ़ लें, माँ बाप पढ़ लें, इंशाअल्लाह बेहतरीन रिश्तों के असबाब हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई कर्ज़ के बोझ में दबा हुआ है, कर्ज़ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, तो जुम्मतुल मुबारक के दिन अपने गुनाहों की तौबा करने के बाद कर्ज़ से निजात के लिए हाथ फैलाकर रब्बे करीम से मांग लीजिएगा। कर्जदारों के कर्ज भी उतर जाएंगे। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत के लिए पढ़ लो। कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लो। ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी के लिए पढ़ लो। 19 शाबान जुम्मतुल मुबारक का दिन सूरतुल कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ने की हर किसी को इजाज़त आम है। और आप रब्बे करीम से जो भी मांग सकते हैं, मेरा रब एक बार मांगने पर 70 गुना ज़्यादा, यानी कि आप जुम्मतुल मुबारक के दिन 1 लाख मांगोगे तो मेरा रब की ज़ात 70 लाख से नवाजेगी। ये वक्त, ये घड़ियाँ कबूलियत की हैं। अगर आज का दिन आपने लापरवाही में गुजार दिया, क्योंकि ये मौका साल में एक बार आता है, रमज़ान की आमद है। अगर कोई बंदा रमज़ान में ख्वाहिशात को पूरा कराना चाहता है तो बेहतर ये है कि जिस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है, इस महीने में सूरतुल कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा लाजमी किया जाए। आपने रब्बे करीम से जिस मकसद की नियत कर कर ये वजीफ़ा पढ़ोगे, वो वजीफ़ा मुकम्मल होने से पहले आपकी हर हाजत 100% गारंटी से पूरी हो जाएगी। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। इससे पहले मैं माह शाबान की खुसूसी दुआ करता हूँ। आपने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है। शाबान का महीना है, गुनाहों की बख्शिश का महीना है, ज़िंदगी और मौत के फ़ैसलों का महीना है, रिस्क और दौलत की तकसीम का महीना है,
नसीब और तकदीर लिखवाने का महीना है। ए मेरे मालिक व मौला, तू रहमान है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। आज तेरे सामने भिखारी बनकर फ़कीर बनकर बैठे हैं। आज जो कोई बेरोज़गार है रोज़गार अता फरमा, अगर बीमार है तो शिफा कुल्ली अता फरमा, लाचार है तंग दस्त है सब पर अपनी खुसूसी नज़र करम फरमा, कर्जदारों को कर्ज से निजात अता फरमा, घर से बेसुकूनी का बेबरकती का खातिमा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक जायज़ हाजतों को अपने गैबी ख़जानों से पूरा फरमा। जो मांग पाए मुक़द्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। मेरे मौला, गाज़ा के मुसलमान भाई और फ़लस्तीन के मुसलमान भाइयों की हिफाजत फरमा। उन सब को क़ुव्वत व गलबा नसीब फरमा, उन सब की गैब से मदद फरमा। मेरे मौला, बेशक तू कादिर मुतलक है, लेकिन तू हमसे नाराज़ हो गया है हमारी गफलतों की वजह से। मेरे मौला, जो हमारे मुसलमान भाइयों पर गुजर रही है उसमें उनकी मदद फरमा, हमें माफ़ कर दे मेरे मौला, मदद जारी फरमा। बेशक तेरे सिर्फ एक कुन का मोहताज है, ये सारे यहूदी तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। मेरे मौला, कुन फरमा दे। मुसलमान बेयारो मददगार हैं। मेरे मौला, मर्द मुजाहिद को ज़ाहिर फरमा दे। आमीन 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 आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा और अपने पूरे नाम के साथ लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसी एक की आमीन भी रब्बे करीम को पसंद आ जाए और तमाम सुनने वालों को, तमाम दुआओं में शामिल होने वालों की हर हाजत पूरी हो जाए। वजीफ़ा क्या है? 19 शाबान जुम्मतुल मुबारक के दिन आप जाए नमाज पर बैठकर इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि फजर की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं या ज़ोहर के बाद, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद, किसी भी नमाज के बाद ये वजीफ़ा, ये अमल करने की मुकम्मल इजाज़त आप सब बहन भाइयों को है। बस आप बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर अपने सबसे पहले क्या काम करना है, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, कोई सा भी दुरूद पाक सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप और काट काट कर देख रहे हैं, लेकिन आप 19 शाबान जुम्मतुल मुबारक के दिन का ख़ासम ख़ास शर्तिया वजीफ़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ख़ास है। आप ये वजीफ़ा पढ़ कर देखिएगा। अगर आपसे लापरवाही कोताही में वीडियो को स्किप करने से कोई नुक्ता, कोई अहम बात मिस हो गई तो वजीफ़े का फ़ायदा ना होगा। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि यकीन कामिल के साथ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह वालों 11 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप अगर गाड़ी चाहते हैं, आप रिस्क और दौलत चाहते हैं, आप कर्ज से निजात चाहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ना चाहते हैं, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी हाजात के लिए पढ़ना चाहते हैं, बड़े से बड़े मकासद में कामयाबी के लिए ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ सकते हैं। अगर कोई कहता है कि मुझे वजीफ़ों से आज तक कोई फ़ायदा ना हुआ, तो वो आज 19 शाबान जुम्मतुल मुबारक के दिन ये ख़ासम ख़ास वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके से पढ़कर देखें। सुबह पढ़ोगे तो शाम तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, अपने मकसद की नियत करके साथ ही आपने फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है और फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लेना है। अपनी आंखों को बंद करके पूरी तवज्जो और ध्यान से
रब करीम के सामने झोलियाँ फैला कर मांगना शुरू कर देना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा रब करीम के एक नाम का वजीफ़ा है। ये नाम हर कोई जानता है, ये नाम रब करीम को इतना पसंद है कि इसको पढ़ने वाला आज तक किसी हाजत से महरूम नहीं रहा। और ये नाम पढ़ने वाले को रब करीम की ज़ात से इज़्ज़त, दौलत, मालो, शोहरत, शुक्र से नवाजा जाता है। आप रब करीम का एक सिफाती नाम या अजीज़ू पढ़ेंगे। या अजीज़ू, या अजीज़ू, ये आपने हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ लेना है। सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या अजीज़ू को आपने मुट्ठी बंद करके, सीधे हाथ की मुट्ठी को बंद करके आपने या अजीज़ू, या अजीज़ू, या अजीज़ू को पढ़ना है। और याद रखिएगा कि रब काबा का सिफाती नाम है। इस नाम को पढ़ते दौरान आपके दिल में जो भी हाजात, जो भी बंद आपके मामलात हों, जिसको आप अपने काबू में बंदे को करना चाहते हो, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हो, किसी को अपना बनाना चाहते हो, किसी को अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहते हो, तो मुट्ठी बंद करके या अजीज़ू को पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। या अजीज़ू, या अजीज़ू, या अजीज़ू, या अजीज़ू को आपने 11 बार पढ़ते दौरान मुट्ठी को खोलना नहीं है और तवज्जो के साथ इसको आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लेना है। अगर आप लोग बीवी के लिए पढ़ना चाहते हैं या शौहर के लिए पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नाफरमान औलाद के लिए पढ़ना चाहते हैं, नाफरमान शौहर के लिए पढ़ना चाहते हैं, या किसी ताकतवर दुश्मन को अपने काबू में करने के लिए पढ़ लें। मुट्ठी बंद करके आपने या अजीज़ू, या अजीज़ू, या अजीज़ू को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और 11 बार फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो सूरतुल कौसर का वजीफ़ा है। सूरतुल कौसर अल्लाह पाक की लाडली और बहुत ही प्यारी सूरत है। इस सूरत को दौलत का ख़जाना भी कहा जाता है कि सूरतुल कौसर रिस्क और दौलत का सरचश्मा भी है। जिनके कारोबार चलते चलते बंद हो रहे हैं, जिनके घर में बेरोज़गारी है, बंदिशें हैं, तंगदस्तियाँ हैं, परेशानियाँ हैं, रुकावटें हैं और मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, वो आज 19 शाबान जुम्मतुल मुबारक के दिन सूरतुल कौसर को बताए गए तरीके से पढ़कर देखिए। आप रब करीम से 70 करोड़ भी मांगेंगे तो रब करीम की ज़ात आपको बिल्कुल अता फरमाएगी, आपके मुकद्दर में लिख देगी। जिसको यकीन नहीं आता वो एक बार 19 शाबान जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। रब करीम ने चाहा तो इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि आपकी 7 नस्लें तक काफ़ी होगा। शर्त यह ये है कि आपने वीडियो को शुरू से एंड तक बताए गए तरीके से बिल्कुल देखना है, वीडियो को और वजीफ़े को भी उसी तरीके से पढ़ना है। अब सूरतुल कौसर को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है, 21 टाइम्स पढ़ना है। वजीफ़ा छोटा बताने का मकसद ये होता है कि एक तो ये 19 शाबान जुम्मतुल मुबारक के दिन का मुस्तनद और ख़ासम ख़ास अमल है, जिस तरह बताया जाएगा वैसे ही पढ़ना है, इसमें कोई रद्दो बदल करने की इजाज़त नहीं है। और दूसरी, ये छोटे वज़ाइफ से फ़ायदा ये होता है कि आप थोड़ा पढ़ें लेकिन सुथरा पढ़ें, यकीन कामिल से पढ़ें। बाज़ औक़ात बड़े बड़े वजीफ़ों से इंसान का ध्यान हट जाता है और इसे समझ में नहीं आती, और इसकी वजह भी यही हो जाती है कि इसलिए थोड़ा पढ़ें, सुथरा पढ़ें। लेकिन रब से इतना मांगिएगा कि रब की ज़ात आपको ख़जानों का मालिक बना दे, आपके घर के हालात को बदल दे, आपकी बेसकूनी को, बेबरकती का ख़ात्मा हो जाए। असल मकसद रब करीम को राज़ी करने का, ये अमल बताने का, वजीफ़ा का जो मकसद है वो यही है। अल्लाह वालों, अल्लाह से शर्मा के कभी ना मांगे कि मेरे मौला मेरी औकात तो नहीं लेकिन तू दे दे। आपने इस मोहब्बत और खुलूस के साथ मांगना है कि मेरे मौला तू नहीं देगा तो कौन देगा, तू तो 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, तू मेरा रब है, तू मेरा मौला है। इस तरीके से दुआ मांगनी है कि आप लोग अल्लाह पाक से आहोजारी कर रहे हों, गोया आज रब को रब से मांगने का दिन है, रब को रब से राज़ी करवाने का दिन है। अल्लाह वालों, आप लोगों ने ये पढ़ना है, तवज्जो से सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। एक बार हो गया। इस तरह से आपने इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर 2 बार हो गया। इस तरह से आपने सूरतुल कौसर को पढ़ना शुरू करना है। आपने सूरतुल कौसर को हाथ की उंगलियों पर, तस्बीह के दानों पर सिर्फ 21 बार पढ़ना है। और जब जब आपकी ज़बान से सूरतुल कौसर निकल रही हो, आप रो रहे हों, तड़प रहे हों,
सिसकते हुए रब करीम से मांगते चले जाएं। सूरतुल कौसर पढ़ते दौरान आप रब करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसा भी मांगेंगे, मेरा रब झोलियां भर भर के अता फरमाएगा। वो ज़ात इतनी रहमान है, इतनी करीम है कि जब देने पर आती है तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देती है। सूरतुल कौसर तो वैसे ही रब को राज़ी करने का ख़जाना है। सूरतुल कौसर तो वैसे ही दौलत का खासम खास अमल है। और जब 19 शाबान जुम्मतुल मुबारक के दिन सूरतुल कौसर पढ़ी जाती है तो आसमान से रहमतें बरकतें छम छम बारिश के कतरों की तरफ बरसना शुरू हो जाती हैं। रस्ते के मसाइल ख़त्म हो जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं, मुंह से निकली हर बात ख्वाहिश गैब से पूरी हो जाती है। सूरतुल कौसर 19 शाबान जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ने वाला गैबी फरिश्तों को खुली आंखों से देख लेता है। अल्लाह का कोई वली, अल्लाह का कोई बंदा इंसानी रूप में आकर आपकी मदद कर जाता है। कर्जदारों के कर्ज उतरना शुरू हो जाते हैं, बेघरों को घर मिल जाता है, बे औलादों को यकीन करें साहिब औलाद बना दिया जाता है। ये मेरे रब की कुन का मोहताज है अल्लाह वालों, वो रब जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, फिर क्यों ना इस रब करीम से मांगा जाए। आपने सूरतुल कौसर को बताए गए तरीके से सिर्फ 21 बार पढ़ना है। इस दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। इस दौरान तवज्जो और ध्यान से आप लोग रब की रहमतों की तरफ आप लोग मुतवज्जो हो के इस शाबानुल मुअज़्ज़म का पूरा महीना बरकतों वाला, अज़मतों वाला है, कबूलियत का है। लेकिन 19 शाबान जुम्मतुल मुबारक की एक एक घड़ी कबूलियत की है। जुम्मतुल मुबारक को ईद का दिन भी कहा जाता है, इसे तमाम दिनों का सरदार भी कहा जाता है। खुदारा 19 शाबान जुम्मतुल मुबारक के दिन की कदर व कीमत को आप लोग जानें, इसकी अहमियत को जानें कि किस तरीके से आपने इस महीने को गुजारना है, और ये बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। अब तीसरे नंबर पे जो अमल, जो वजीफ़ा आपने करना है, वो अल्लाह पाक के 2 सिफाती नाम हैं। जब आप लोग पहले नंबर पर या अजीज़ू को पढ़ लें और दूसरे नंबर पे आप लोग सूरतुल कौसर को 21 बार पढ़ लें, फिर तीसरे नंबर पे अल्लाह पाक के 2 सिफाती नाम या गनियो या मुगनी को पढ़ना है। सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है आप लोगों ने, या गनियो या मुगनी, या गनियो या मुगनी, या गनियो या मुगनी। अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक के 2 ऐसे सिफाती नाम हैं कि जिनको मिलाकर अगर पढ़ा जाए तो अल्लाह पाक की जो रहमतें हैं, जो बरकतें हैं, जो सिफात है, वो डबल हो जाती है। वो आपको इस कदर नवाजेगी, इस कदर नवाजेगी कि गोया गुमान नहीं होगा। मैं बारहा आप लोगों से एक बात कह रहा हूँ, बार बार आपसे एक इल्तिजा, एक इल्तिमास कर रहा हूँ कि आप लोग नहीं जानते कि ये महीना कौन सा है। आप लोग इस महीने की अजमतों बरकतों के बारे में नहीं जानते। अगर आप लोग इस महीने की बरकतें और अजमतों को जान जाओगे तो यकीन करो, मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ कि आप लोग मुसल्ले से उठोगे नहीं। और जो आगे आने वाला महीना है वो रमज़ान शरीफ का महीना है। रमज़ान की तैयारी पहले से की जाती है। जिस तरह से हम लोग राशन पहले रख लेते हैं, इसी तरीके से हमें इस महीने का इस्तेकबाल के लिए पहले से कुछ ना कुछ करना बेहद ज़रूरी है। अगर हम लोग पहले से रमज़ान करीम का इंतज़ाम नहीं करेंगे तो आप खुद सोचें, हम लोग ही खसाने में रहेंगे। तो या गनियो या मुगनी को पढ़ने के बाद दोबारा दुरूद पाक पढ़ लें, वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। हाथ उठा के जो दुआ मांग सकते हैं मांगे। अल्लाह वालों, कोई से 2 नाम अल्लाह पाक के सिफाती कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का निगहबान हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।